Hello dear students, now let us move to next chapter, chapter number 8, which is a very small chapter but yet important for the exam so far as some of the sections are concerned. Companies incorporated outside India, and the other topic which is included is foreign company. Companies incorporated outside India and foreign companies, many students are using these two words interchangeably. No, it is not. Each and every company which is incorporated outside India, whether it is relevant to India or not, they are called as companies incorporated outside India. But when we can use the word foreign company, so far as Companies Act 2030 is concerned, if it is satisfying the conditions which are mentioned under section 2 clause 42. So the definition of foreign company is given under 2 clause 42. I can say that each and every company which is incorporated outside India may not be a foreign company, but each and every foreign company for Companies Act 2013 has to be the company which is incorporated outside India. So those companies which are registered under Companies Act 2013 are normal company which we called as domestic companies. The other companies can be foreign company, cannot be foreign company. There are so many provisions in this chapter which is only to be applied by foreign company, and some of the provision like provisions for prospectus is for those companies also which are incorporated outside India, still not a foreign company. तो समझते हैं कि foreign company किसको बोला जाता है. It means a company incorporated outside India plus doing business in India by place of business. तीन कंडीशन यहां पे साथ में फुलफिल होनी चाहिए. सबसे पहले इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया अंडर एनी अदर एक्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, प्लस डूइंग बिजनेस इन इंडिया, उनका कुछ बिजनेस हो रहा है इंडिया से, प्लस इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, इट कैन बी बाय देमसेल्व्स और थ्रू एजेंट, खुद से कर सकते हैं या एजेंट के थ्रू कर सकते हैं. एजेंट अगर यहां पर है देन इट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली. तो एजेंट के थ्रू यहां से कोई बिजनेस हो रहा है लाइक बिजनेस कनेक्शन, देन ऑल्सो इट इज अ फॉरेन कंपनी. और इट इज डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. यहां पे उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पर उसकी वेबसाइट है यहां पे, चाहे उसका मेन डोमेन यहां पे है कि नहीं, पर वेबसाइट के थ्रू बिजनेस कर रही है. लाइक वी कैन से अलीबाबा फॉर एग्जाम्पल. Alibaba is a company registered outside India, but through website it is doing business in India also electronically. Place of business is in India, doing business in India, company registered outside India, then it will be a foreign company. So whether main server is in India or not, and it include B2B transaction, trader to trader, B2C business to customer, digital supply of any books or any other links for software, accept deposit or financial settlements, online services are provided, or subscribing from Indian citizen, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली अगर वो कर रही है देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और एनी अदर वे. हियर प्लेस ऑफ बिजनेस विल ऑल्सो इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफिस, एजेंट और रजिस्टर्ड ऑफिस. ये कोई भी ऑफिस अगर है, शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफिस, शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, एजेंट ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस. तो अगर कोई कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्लस इट इज हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्लस इट इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, then it is not a foreign company. अगर उसका place of business ही इंडिया में नहीं है then also it is not a foreign company. एक चीज याद रखो, merely conducting board meeting in India is not business activity. सिर्फ आप ऐसा बोलो कि मैं तो सिर्फ board meeting इंडिया में conduct कर रहा हूं, it is not a business activity, it is a normal activity. Business activity includes sale, purchase, etc. अगर कोई ऐसी कंपनी है which is a foreign company तो उसे 380 फॉलो करना पड़े. There are some documents which has to send to ROC within a particular 30 days of time in a particular format, ताकि ऐसी कोई कंपनी बाहर की इंडिया से बिजनेस कर रही है उस पे ROC स्पेशल नजर रख सके, उसके पास से उसका अकाउंट्स मंगवा सके, उसके एनुअल रिटर्न्स मंगवा सके. डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय अ फॉरेन कंपनी. देखो फॉरेन कंपनी को पूरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, थोड़े बहुत सेक्शन उसके एप्लीकेबल होते हैं, प्लस थोड़ी रिक्वायरमेंट अलग से उसे फुलफिल करनी पड़ती है. यहां पे मैं हर एक कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया नहीं बोला. कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर है, जिसका इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको हम थोड़ी ये सारे सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं. वो इंडिया के सेक्शंस क्यों फॉलो करे. हाँ, पर फॉरेन कंपनी अगर है दैट मींस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो उसको हम ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स उस पर इंपोज कर सकते हैं.
कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे डिलीवर करने हैं, यहां पे मैंने इसी सेक्शन को एक पर्टिकुलर चार्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है सो दैट इट इज नॉट अ बर्डन फॉर यू। इसके ढेर सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस वगैरह मैंने अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में कवर किए हुए हैं, विच इज देयर ऑन online.jkshah classes। द डॉक्यूमेंट इज टू बी डिलीवर्ड। Which documents are to be delivered? Number one, nature of the document. Number one, MOA, AOA, constitution of the company, उसका memorandum, articles, या तो अगर दूसरी कंट्री है तो उसका constitution. Address of registered office. Address of एक मिनट हाँ, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उनकी पर्सनल डिटेल्स, नेम, एड्रेस, नंबर, पैन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इन अदर कंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इंचार्ज इन इंडिया, यानी कि एक चीज समझ लो, फॉरेन कंपनी को कंपलसरी एक बंदा अपॉइंट करना पड़े हु इज कॉल्ड एज पर्सन इंचार्ज इन इंडिया, जिसके थ्रू आरओसी सीधा डीलिंग कर सकती है सो फार एज दिस फॉरेन कंपनी इज कंसर्न। प्लस ही शुड बी ऑथराइज्ड टू रिसीव ऑल द नोटिसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो। एड्रेस ऑफ ऑफिस इन इंडिया, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस आपने बोला वो अगर वो फिजिकली है तो उसका एक एड्रेस दे दो एंड इट विल बी डीम्ड एज योर प्रिंसिपल ऑफिस। पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन एन अर्लियर ओकेजन, अगर इसके पहले भी आप इंडिया में कोई बिजनेस करते थे, आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस था, तो वो कब खोला था, कब बंद किया था, किस सिटी में वो बिजनेस था, क्यों बंद किया था, ये सारी चीजें आपको आरओसी को देनी पड़े ताकि पता चले कि इसका पहले की हिस्ट्री क्या है इसकी। Declaration that director of foreign company is not convicted under any other law or even the law of that country also. Attest copy of approval from RBI under FEMA. बाहर की कंपनी यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है तो उसको FEMA के अंदर RBI की अप्रूवल भी तो लेनी पड़ेगी, उसकी एक अटेस्ट कॉपी मंगवाओ। बात यह है कि आरओसी को RBI के पास से ये चीज नहीं मिल रही है, क्लाइंट के पास से उसकी अटेस्ट कॉपी मंगवा रहा है, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी इन इंग्लिश। दूसरी कंट्री का है तो चाइनीज लैंग्वेज में हमें कोई डॉक्यूमेंट देगा तो हम क्या समझेगा, तो इंग्लिश में दो। अगर प्रॉपरली वो इंग्लिश में नहीं बना, चाइनीज में ही है, तो उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के लाओ, सिंपल। अच्छा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स थे पहले कि ये ट्रांसलेशन कौन कर सकता है वगैरह वगैरह, ये सारे रूल्स अभी उन लोगों ने निकाल दिए हैं सिलेबस में। मॉड्यूल में जितना दिया है आपको सिर्फ वहीं पढ़ना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप किसको सबमिट करोगे, टू रजिस्ट्रार को। पर कौन से रजिस्ट्रार को, हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले तो मुंबई और पुणे का रजिस्ट्रार भी अलग अलग है। तो यहां पे फॉरेन कंपनी अगर है तो सिर्फ एक ही रजिस्ट्रार को ये सारी डिटेल्स भेजनी है, द रजिस्ट्रार विच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। आप कहीं पे भी हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं पे भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी कौन सी आरओसी को भेजनी है, न्यू दिल्ली। कितने दिन में, जब से आपने ऑफिस इंडिया में सेटअप की उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर FC1 में, फॉरेन कंपनी -1 FC1, एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर ली, फिर उसमें कोई चेंज होता है, जैसे कि आपके कंपनी के डायरेक्टर्स में कोई बदलाव आता है, पर्सन ऑफ इंचार्ज बदल रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे हो वगैरह वगैरह, तो ये चेंज भी विद इन 30 डेज ऑफ चेंज आपको इन्फॉर्म करने पड़े किसको, आरओसी को एट न्यू दिल्ली विद इन 30 डेज। कौन से फॉर्म में, FC2। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर हो गई। कौन सी आरओसी को डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, विच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। सेटअप ऑफिस कहाँ पे, कितने दिन में ये सारी डिटेल्स भेजनी पड़े, विद इन 30 डेज। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो FC1, चेंजेस है तो FC2। ओके। सेक्शन 381 इज ऑल अबाउट अकाउंट्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रिटर्न्स, ये सारी चीजें भी तो मंगवानी पड़े, इस पे भी तो नजर रखनी पड़े। All the foreign company will prepare an account as per calendar year and for Indian operation and audit in the same manner as a Indian company is required to do so. एक इंडियन कंपनी जिस तरीके से अपने अकाउंट प्रिपेयर करती है, जिस स्केड्यूल में वो अकाउंट प्रिपेयर करती है, बाय फॉलोइंग शेड्यूल 3, उसी हिसाब से फॉरेन कंपनी को भी अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़े। पर ध्यान रखिए, आरओसी उसके दूसरी कंट्री के अकाउंट्स थोड़ी मंगवाएगी। आरओसी को क्या पड़ा है, इंडिया से तुम कितना कमाया, इंडिया में तुम्हारे अकाउंट्स कितने, इंडिया से तुमने जो डीलिंग्स की उसका कच्चा चिट्ठा मुझे बताओ। तो ये फॉरेन कंपनी को कंपलसरी है सिर्फ उसी चीज का अकाउंट इंडिया में बनाने का जो उसने इंडियन ऑपरेशन से कमाया हो। इंडियन ऑपरेशन से जो असेट रिलेटेड है, जो लायबिलिटी रिलेटेड है, उसी चीज का अकाउंटिंग आरओसी को चाहिए, बाकी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल्स फॉर द अकाउंट्स, दैट इज ओके। राइट नाउ इट इज नॉट देयर फॉर योर सिलेबस। कितने टाइम में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आरओसी को फाइल करना है, दिस यू हैव टू फाइल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर। देखो, सेक्शन 137 और 92 की अलग अलग लिमिट्स है, विच इज फ्रॉम द एंड ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग 60 डेज एंड 30 डेज। यहां पे ये लिमिट्स अलग है, यहां पे की टाइम लिमिट्स फॉरेन कंपनी की अलग है। इट इज 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मैक्सिमम 30 सितंबर तक।
and annual return is to be submitted within 30 days from the end of financial year, that is maximum up to 30th April. So annual return 60 days के अंदर अंदर financial year के end से, और हाँ इसी कम टाइम पीरियड क्यों दिया? नॉर्मल कंपनी होती है तो एजीएम के एंड से 30 डेज एंड 60 डेज देखना है, यहां पे फाइनेंशियल ईयर के एंड से क्यों? फॉरेन कंपनी को एजीएम की जरूरत नहीं होती बिकॉज द शेयर होल्डर्स कैन बी आउटसाइड इंडिया। तो एजीएम नहीं बुलानी है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 मंथ में तो कोई भी अकाउंट रेडी हो जाए, और 60 डेज के अंदर तुम्हारी सारी मैनेजमेंट की चीजें तो तुम डिस्क्लोज कर ही सकते हो। एजीएम की जरूरत नहीं है, इसीलिए टाइम पीरियड वो लोग कहां से देखते हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज द रूल्स? Along with the financial statement, you have to file a form called FC3, in which there will be a list of all the places of business in India as on the balance sheet date. ऐसा जरूरी है कि सिर्फ एक ही प्लेस हो, एक से ज्यादा भी हो। कितने प्लेस से तुम बिजनेस कर रहे हो उसकी एक पूरी लिस्ट आपको देनी पड़े इन फॉर्म नंबर FC3. Along with that, you have to file certain more documents which is showing statement of related party transaction plus statement of repatriation profit, कितना इंडिया के बाहर ले गए, कितना वहां के शेयर होल्डर को दिया, प्लस ट्रांसफर ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, कितना इंडिया के बाहर ट्रांसफर किया इंक्लूडिंग डिविडेंड, रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, वगैरह वगैरह। तो फाइनेंशियल, अच्छा ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ FC3 के अंदर आपको एक लिस्ट देनी पड़े, हाउ मच बिजनेस प्लेसेस आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी बिजनेस प्लेसेस आर देयर इन इंडिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़े। सेक्शन 382 में बताया गया है डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसे अपना नाम डिस्प्ले करना पड़े। क्या क्या चीजें डिस्प्ले करनी है? नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ओरिजिनल कंट्री, लिमिटेड और अनलिमिटेड, क्योंकि बाहर की कंट्री में अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, ताकि कोई भी आपके साथ डीलिंग कर रहा है तो उसे पता चले कि आप एक फॉरेन कंपनी हो, आप इस कंट्री की कंपनी हो। विश्वास रखना है या नहीं वो लोग डिसाइड कर लेंगे। कहां पे किस तरीके से आपको ये लिखना पड़े इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्लस आप जिस स्टेट में हो वहां की लोकल लैंग्वेज में भी ये लिखना पड़े, ताकि कोई किसी को अगर इंग्लिश नहीं आता है तो वो पढ़ सके। लेजिबल लेटर्स में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम छोटे फॉन्ट में 2 या 3 फॉन्ट में कर दिया, प्रॉपर फॉन्ट होने चाहिए। कहां पे डिस्प्ले करोगे? आउटसाइड एवरी ऑफिस आपका एक बोर्ड होगा, वहां पे आपके हर एक लेटर पे, आपके हर एक इनवॉइस पे, आपकी हर एक एडवर्टीजमेंट जो जहां पे भी दे रहे हो वहां पे, कोई भी नोटिस कहीं पे भी दे रहे हो, और जहां जहां प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हो वहां पे, यानी आप लोग जो भी इश्यू कर रहे हो वो हर एक जगह पे, प्लस आपकी ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगता है वहां पे भी नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री इन विच यू आर इनकॉर्पोरेटेड, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन इंग्लिश एंड इन लोकल लैंग्वेज यू हैव टू डिस्प्ले। सेक्शन 383, जैसे मैंने बताया कि कभी भी अगर एक फॉरेन कंपनी होती है तो फॉरेन कंपनी को कंपलसरी एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है हु इज नेम्ड एज पर्सन इंचार्ज। आपने कोई भी नोटिस अगर कंपनी को देनी है तो वो पर्सन इंचार्ज को दे दो, रिप्लाई मंगवाना है पर्सन इंचार्ज के पास से मंगवा लो। इट इज सफिशिएंटली वैलिड दैट यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, यू हैव गिवन द नोटिस प्रॉपरली टू द कंपनी इटसेल्फ। So any process, notice or document will be deemed served to a foreign company if it is addressed to the person whose name is there in section 380. Plus, it has to be posted to the place or email at the address which is mentioned. जो एप्लीकेशन 380 की थी उसमें जो ईमेल आईडी था वहां पे भी ये चीज आपको डालनी पड़े, ताकि उस कंपनी के डायरेक्टर सीधा भी उस चीज को व्यू कर सके और ऐसा कोई बाद में वो लोग एलिगेशन ना डाल सके कि आपने प्रॉपर हमें सबमिट नहीं किया था। Section 384, which other sections of the act are applicable to a foreign company? See, section 380 से लेकर 383 तो एप्लीकेबल है, पर उसके अलावा कुछ जनरल सेक्शंस भी है जो फॉरेन कंपनी को अप्लाई होते हैं, जो डोमेस्टिक को भी अप्लाई होते थे। 380 से लेकर 383 सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए, बाकी के जो सेक्शंस की लिस्ट बता रहा हूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो, फॉर डोमेस्टिक कंपनी ऑल्सो। सेक्शन 71 डिबेंचर्स, डिबेंचर इश्यू करते वक्त जो रूल्स डोमेस्टिक कंपनी को अप्लाई होते हैं वही रूल्स किसे अप्लाई होंगे? फॉरेन कंपनी को। एनुअल रिटर्न, इन सब का फॉर्मेट जो डोमेस्टिक कंपनी का होता है वही किसका होगा? फॉरेन कंपनी का। फर्क क्या है? टाइम लिमिट का। सेक्शन 135 CSR की एक्टिविटी फॉरेन कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, फॉरेन कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल। 77 to 87 दैट इज चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अगर कोई चार्ज क्रिएट किया गया है तो डोमेस्टिक कंपनी को जितने फॉर्मेट्स भरने हैं, जो चार्ज की डिटेल्स रखनी है वो सारी डिटेल्स फॉरेन कंपनी भी रखेगी। देन
चैप्टर 14 सेक्शन 206 टू 229 हमने पढ़ा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीजें फॉरेन कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 139, सेम एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। वाइंडिंग अप की प्रोसीजर भी फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल होती है, पर एक चीज याद रखना, जब मैं वाइंडिंग अप बोलता हूं तो हम सिर्फ उसके इंडियन ऑपरेशंस को वाइंड अप करवा सकते हैं, उसकी खुद की कंट्री में उस कंपनी को वाइंड अप नहीं करवा सकते। वी आर डूइंग वाइंडिंग अप ऑफ अ फॉरेन कंपनी सो फार एज इंडियन ऑपरेशंस आर कंसर्न्ड। सेक्शन 387 से लेकर 390 बहुत बड़े बड़े सेक्शंस है, जिसे मैंने यहां पे एक सिंक्रोनाइज मैनर में कंबाइन कर दिया है। प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस, ये जो सारे सेक्शंस है याद रखिएगा, इट इज नॉट ओनली फॉर अ फॉरेन कंपनी, इट इज फॉर अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर बाहर की कोई कंपनी यहां पे आके प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, अपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करवा देती है, तो उसको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? सी ऐसे ही तो वो इश्यू नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़े। प्रोस्पेक्टस के लिए जो जनरल रूल्स है डोमेस्टिक कंपनी के, वो तो सारे इसे भी अप्लाई होंगे। उसके अलावा कुछ और चीजें उसे इंक्लूड करनी है, कुछ और चीजों के ध्यान में लेने जैसी बात है जो यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस इज टू बी डेटेड प्लस इट शुड बी साइंड प्लस रजिस्टर्ड विथ आरओसी। प्रॉपर डेटेड होना चाहिए, प्रॉपरली साइन हुआ होना चाहिए, प्लस वो आरओसी के पास रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26, सेक्शन 26 में जो नॉर्मल प्रोविजन बताए गए हैं वो प्रोविजन तो यहां पे लगेंगे, उसके साथ साथ थोड़े दूसरे कंटेंट भी होंगे जो फॉरेन कंपनी को, यानी कि कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को ऐड करने हैं। लॉ इन विच रजिस्टर्ड, यानी उस कंट्री का कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ये रजिस्टर्ड है। एड्रेस इन इंडिया वेर इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड सारी चीजें, वो कहां पे हम लोग वेरीफाई करने आ सकते हैं, वो एड्रेस बताइए। डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, कंस्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जो मैंने बताया दूसरी कंट्री में जनरली कंस्टिट्यूशन, बंधारण होता है, तो वो कंस्टिट्यूशन क्या है आपका वो बताना पड़े। लिमिटेड बाय शेयर से, अनलिमिटेड बाय शेयर से, वगैरह वगैरह, कितने शेयर कैपिटल है। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है ये भी आपको बताना पड़े। पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 4, that is law in which you are registered, address in which instrument can be inspected, and constitution of the company. This you don't have to disclose if you are issuing the prospectus after 2 years of commencement of business in India. क्यों? 2 साल तक आप इंडिया में थे, जिसको आपको पहचानना था उन लोगों ने पहचान लिया। 2 साल के बाद ये सारी चीजें एडिशनली बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 2 साल के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो तो आप कंट्री के लिए नए हो, कंट्री के लोगों के लिए नए हो, आपकी पूरी जानकारी जानना उनके लिए जरूरी है। अगर आप लोग आईपीओ के लिए आ रहे हो, लिस्टिंग करवा रहे हो, तो रूल्स के हिसाब से ही आईपीओ होंगे, ये रूल्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एनी वैल्यूएशन, रिगार्डिंग एनी अदर मैटर, रिगार्डिंग एनी रेशियो, तो ये तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में भी है कि उसका एक कंसेंट लेटर होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में कि मेरी कंसेंट है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करवाने की। इफ स्टेटमेंट इज विड्रॉन बाय द एक्सपर्ट लेटर ऑन, देन नोटिस ऑफ सच विड्रॉल इज ऑल्सो टू बी गिवन, कि मैं ये विड्रॉ कर रहा हूं, ऐसी नोटिस भी आप दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स फॉर इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट का मीनिंग ये होता है कि आप कंट्री हो इंडिया के बाहर की, पर आप इंडियन रुपीज में कोई डिपोजिटरी रिसिप्ट इश्यू कर रहे हो इन इंडिया, तो आईडीआर इश्यू करने के जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ये सेक्शन 390 बोलता है, ये रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपने डाली, सिविल लायबिलिटी या क्रिमिनल लायबिलिटी लग जाएगी, विच इज एप्लीकेबल इन सेक्शन 34 to 36। ये सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी के साथ साथ पेनल्टी भी लग जाती है अंडर सेक्शन 448, विच इज एज पर सेक्शन 447 बिकॉज ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की पेनल्टी ऑलवेज कहां पे लिखी जाती है? 447। सेक्शन 397, 392, अगर इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, इफ यू आर अ कंपनी देन पेनल्टी विल बी 1 लाख to 3 लाख। और अगर कंटिन्यूअस वो वायोलेशन करते रहे, 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को वो सारी चीजें देनी थी, नहीं दी, कंटिन्यूअस नहीं दी, तो हर दिन का 50,000 का पेनल्टी। ये पेनल्टी भी हाईएस्ट वो लोग एग्जाम में पूछते हैं। और ऑफिसर को इंप्रिजमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ, और उसे फाइन लग सकता है 25,000 से लेकर 5 लाख तक का। तो ये वो पेनल्टीज है जो फॉरेन कंपनी को अप्लाई होगी अगर इस चैप्टर का वायोलेशन किया जाता है तो। सो दैट वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर फॉरेन कंपनी, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बने उतना मैक्सिमम समराइज किया है विदाउट लिविंग कंटेंट।
इसका और ज्यादा एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया, यू कैन हैव इट ऑन अ फास्ट ट्रैक कोर्स व्हिच इज अवेलेबल ऑन online.jkshah classes. Now friends, let us continue with chapter number 9 which is miscellaneous provisions. नाम भले ही उसका miscellaneous provision है पर वो miscellaneous एक्चुअली नहीं है, एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स कवर्ड है जो अलग अलग एग्जामिनेशन में 4-4 मार्क में भी अलग अलग आ सकते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पनिशमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड, अदर पेनल्टीज, डॉर्मेंट कंपनी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इस चैप्टर में विच इज मिसलेनियस प्रोविजन। मेरा मैक्सिमम ट्राई इसमें ये रहेगा कि सारा कंटेंट में इसमें कवर कर लूं विद द वेरी समराइज मैनर, ताकि लास्ट दिन पे विद इन हाफ एन आवर you can be thorough with this chapter. That is the sole intention over here. Section 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर। 3 साल पहले एक प्रोविजन आया इस एक्ट में जहां पे बोला गया कि अब तक क्या होता था, कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी वैल्यूएशन करवाना हो तो आप कोई पर्टिकुलर वैल्यूअर के पास जाते थे जो इसके पास डिग्री होती थी, वो आपके हिसाब से वैल्यूएशन करके भी देता था। कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं थे पर उसे स्टैंडर्डाइज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था और उसके वजह से एक कंसेप्ट लाया गया कॉल्ड एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जिसकी खुद की एग्जामिनेशन होती है, उसके खुद के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर दी, यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, उसकी मेंबरशिप आपको मिल गई, तो ही आप बोले जाओगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब कंपनी में कोई भी वैल्यूएशन करवाना है, असेट का, लायबिलिटी का, शेयर कैपिटल का, गुडविल का, स्टॉक का, तो ये सारे वैल्यूएशन कंपलसरी एक ही बंदा कर सकता है, नेम्ड एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है, जिसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो वैल्यूएशन भी कर सकता नहीं है। सो दिस कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इट विल अप्लाई वेयर वैल्यूएशन इज मेड फॉर एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, गुडविल, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी और इवन नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। जब अमालगमेशन कर रहे हो तो नेटवर्थ की जरूरत पड़ेगी, वाइंडिंग अप के केस में लायबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है, प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ सकती है। अगेन जब आपको गुडविल बेचनी है या तो शेयर्स किसी को ट्रांसफर करने हैं, बिंग अनलिस्टेड कंपनी, तो शेयर डिबेंचर का वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। ये सारी चीजों का वैल्यूएशन कौन कर सकेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको अपॉइंट कम करेगा ऑडिट कमिटी, और अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान रखिए, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएगा। इट हैज टू बी कंपल्सरीली बी टू बी डन बाय ऑडिट कमिटी। ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसकी ड्यूटीज क्या क्या रहेगी? ही विल मेक ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, ये तो सबसे पहली ड्यूटी है। प्लस ही विल एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग इस फंक्शन, कि वो सारी चीजों को ध्यान में रख रहा है कि नहीं रख रहा है। जैसे कि असेट का वैल्यूएशन करना है तो कब परचेस किया था, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगता है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, कितना यूजेज हुआ, कौन सी कंडीशन है प्रेजेंट में, वगैरह वगैरह। प्लस ही विल डू द वैल्यूएशन एज पर द रूल्स, इनके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि इतने साल पहले की असेट है तो कितना डेप्री लगाओगे, वगैरह वगैरह, साल्वेज वैल्यू कितनी लोगे। नो वैल्यूएशन कैन बी डन इफ इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड और बिकमिंग इंटरेस्टेड प्रायर टू 3 years ऑफ अपॉइंटमेंट। सिंपल भाषा में बोलूं तो जिस दिन वो उस पर्टिकुलर असेट में या उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्टेड हो गया और उसका बायस आ जाएगा वैल्यूएशन करने में, उस दिन से लेकर एटलीस्ट 3 साल तक उसकी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तौर पे उस कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, अप टू 3 years। ये 3 साल याद रखना, एमसीक्यूज में आता है या वन लाइनर में भी आ सकता है। इस चैप्टर में से हाईएस्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक पैराग्राफ या 4 क्वेश्चन और 4 मार्क का, एक मार्क का एक। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स स्कोर करने के लिए। इफ यू आर डूइंग एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजंस, जहां पे आप प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस नहीं रख रहे हो, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हो, इंटरेस्टेड थे वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, तो इंप्रिजमेंट लग जाएगी अप टू 1 year, पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख से लेकर 5 लाख। पर अगर फ्रॉड के केस में नहीं थे आप, अनइंटेंशनली आपसे वो डिफॉल्ट हो गया, तो 50,000 तक की ही पेनल्टी लगेगी। पर इन दोनों केसेस में आपको जो भी रेम्यूनरेशन मिला वो आपको कंपनी को रिफंड कर देना पड़े, भले ही आपने काम किया था, प्लस कंपनी को आपके वजह से अगर कोई डैमेज होता है तो वो आपको पे कर देना पड़े। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये रूल्स। इतने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते पर रूल्स आपके मॉड्यूल में दिए हुए तो हमको पढ़ने भी पड़े। कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। एलिजिबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पहले तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन बन सकता है ओवरऑल,
नंबर 1, अ वैल्यूअर हु इज अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। IBBS जैसे कितने ही सारे ऑर्गेनाइजेशन है इस कंट्री में जो स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी अप्रूवल लेनी पड़ती है MCA के पास से। कोई भी बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता, उसे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो कंपलसरी बनना ही पड़े। अगर वो मेंबर है तो ही जाके वो वैल्यूएशन कर पाएगा। रेकमेंडेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक CA तभी एक CA बन पाएगा जब वो ICAI का मेंबर है। उसी हिसाब से अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो तो ही जाके आप ये टास्क कर पाओगे। He has passed the valuation examination, MCA कंडक्ट करती है ये एग्जाम, और कब उसने पास की है? विद इन 3 years प्रिसीडिंग द डेट ऑफ टेकिंग एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एग्जाम पास करने के बाद 3 साल आपको किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अंडर रह के काम करना पड़े, एक्सपीरियंस लेना पड़े, उसके बाद आप इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन के खुद रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। He possess proper qualification and experience. He is not a minor, not been declared unsound mind, not declared undischarged bankrupt। वो खुद अगर bankrupt है तो वैल्यूएशन कंपनी का सही तरीके से शायद ना भी कर पाए। He should be resident in India as per FEMA। FEMA में जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिक्लेयर करने का रूल्स है उसके हिसाब से वो रेजिडेंट होना चाहिए। Not offended for a punishment for a period of more than 6 months or for offense involving moral turpitude and 5 years has not elapsed from the expiry of sentence। ये सेम तरीके की लाइंस लिखी हुई है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में। For directors, this is for registered valuer। Not levied section 271J of Income Tax Act। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गलत स्टेटमेंट देने का, गलत सर्टिफिकेट इश्यू करने का पेनल्टी नहीं लगा है। He is fit and proper with regards to integrity, financial solvency, etc। No partnership entity or company will be eligible if। कोई पार्टनरशिप फर्म या कंपनी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकती है, पर वो एलिजिबल कब नहीं होगी? When it is set up for an object other than rendering professional or financial services। अगर वो कोई दूसरा ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और उसके साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट वो ये काम करना चाहती है, नहीं कर पाएगी। उसका कोर ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करने का। इफ अ कंपनी इट इज अ सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट ऑफ एनी अदर कंपनी, वो खुद मेन कंपनी नहीं है, किसी और कंपनी के अंडर रह के काम कर रही है तो भी नहीं चलेगा। इट इज अंडरगोइंग द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, then any of the partner or director is ineligible। उसका कोई पार्टनर या डायरेक्टर इनएलिजिबल है as per the above 11 criteria। Not less than 3 or all whichever is lower is not registered valuer। इसका मीनिंग क्या? अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 5 पार्टनर है तो एटलीस्ट 3 या 5 whichever is lower 3, एटलीस्ट 3 तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने ही चाहिए। 10 है तो 10 या 3 whichever is lower 3, एटलीस्ट 3 तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होनी ही चाहिए। मान लो 2 ही पार्टनर है तो 2 और 3 whichever is lower 2 मींस दोनों के दोनों कंपलसरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म या अगर डायरेक्टर ऐसा नहीं है तो कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकती। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट मास्टर डिग्रीज। डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम लॉ इन इंडिया और एंड एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो तो मैंने पहले ही बताया 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ही हैज अ बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन से कम हो गई इसलिए एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ा दिया 5 साल का। और प्रोफेशनल एंड हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, CA, CS, CMA प्लस 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहां पे एक्सपीरियंस उन्होंने 3-3 साल का रखा है, यहां पे 5 साल का। व्हाट इज द कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन? जिस टाइम पे वो रजिस्टर्ड है ऑल द टाइम ही पजेस द क्वालिफिकेशन। कभी भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है तो उसका नाम निकल जाएगा। ही कंप्लाइज विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। ही टेक प्रायर परमिशन फॉर शिफ्टिंग मेंबरशिप फ्रॉम वन रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। अगर वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहा है तो प्रायर परमिशन चाहिए उसकी MCA के पास से। ही टेक एडिक्वेट स्टेप फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस। उसके सामने कोई भी ग्रेवियंस आ रही है तो उसको प्रॉपरली वो हैंडल कर रहा है। इन केस ऑफ फर्म ओनली रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैन एक्ट एंड साइन। बट ऑब्वियसली CA के फॉर्म में भी ऐसा ही होता है ना, CS और CS ने साथ में मिलकर पार्टनरशिप कर ली तो ऑडिट रिपोर्ट पे CA साइन कर सकता है, CS नहीं कर सकता। उसी हिसाब से रजिस्टर्ड वैल्यूअर की फॉर्म में 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, एक नहीं है, तो साइन कौन करेगा? सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फर्म अगर है तो उसने जो भी एक्ट किया रजिस्टर्ड वैल्यूअर पार्टनर ने, उसके लिए हर एक पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे, सेम लाइक CA फर्म।
firm or company will inform the authority that is MCA on removal of partner or director along with the reason. अगर वो फर्म या कंपनी कोई भी पार्टनर या डायरेक्टर को निकाल रही है तो उसको कंपलसरी इस चीज की इंफॉर्मेशन देनी पड़े. It will maintain the record of all the assignment for at least 3 years from the completion of assignment. सारे वर्किंग पेपर्स वगैरह 3 साल तक प्रिजर्व करने पड़े. Registered valuer will comply the valuation standard unless it is notified by central government. अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड अभी तो चलो खैर उन्होंने नोटिफाई कर दिए, पर ये अभी सिलेबस में तो डेफिनेटली नहीं आएगा. तो जब तक कोई प्रॉपर चीज का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड नहीं है तब तक आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करोगे. जब से इंडिया के खुद के वैल्यूएशन स्टैंडर्ड आ जाते हैं तब से वो स्टैंडर्ड फॉलो करोगे. ही मे टेक इनपुट्स फ्रॉम अदर वैल्यूअर, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है. पर जैसे आप ऑडिट में भी पढ़ते हो ऐसे 610 या 620 में, अगर आप किसी दूसरे ऑडिटर की हेल्प लेते हो या यहाँ पे भी अगर किसी दूसरे वैल्यूअर की हेल्प लेते हो तो आप अपने सर्टिफिकेट में या रिपोर्ट में ये लिख सकते हो कि मैंने इस वैल्यूअर की हेल्प ली पर उसके लिए अल्टीमेटली मैं खुद ही जिम्मेदार हूं. ये भी लिखना पड़े. द लायबिलिटी विल बी द वैल्यूअर विच इज अपॉइंटेड, नॉट ऑफ द वैल्यूअर हु इज गिवन द एडवाइस. तो अल्टीमेट लायबिलिटी तो उसी वैल्यूअर की रहेगी. द वैल्यूअर इन हिज रिपोर्ट विल स्टेट सम फैक्ट like the information of the asset, the purpose for which valuation is done, identity of the valuer and other expert, disclosure of conflict in interest and date of appointment or report date, inspection taken, मैंने कौन सा इंस्पेक्शन किया था, नेचर एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन के बेस पे वैल्यूएशन किया, प्रोसेस अडॉप्टेड, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ रिपोर्ट. रिस्ट्रिक्शन यानी मान लो गुडविल का वैल्यूएशन किया, वो सिर्फ अमालगमेशन के पर्पस के लिए किया तो लिखो कि दिस इज ओनली फॉर द अमालगमेशन विद दिस कंपनी ऑन दिस डेट. इसका रिस्ट्रिक्ट करो यूज, वरना तो हर किसी जगह पे ही यूज हो जाएगा. एंड फाइनल द कंक्लूजन दैट व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू एंड ऑल. टेम्पररी सरेंडर. रजिस्टर्ड वैल्यूअर मे सरेंडर टेम्पररीली एज पर रूल्स एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटी. थोड़े टाइम के लिए अगर उसको ये काम नहीं करना है तो वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकते हैं. रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन विल इन्फॉर्म द अथॉरिटी इफ मेंबर हैज टेम्पररीली सरेंडर्ड and put the details on website also so that कोई भी अगर ये वेबसाइट विजिट कर रहा है तो उसे पता चले कि कौन सा मेंबर का सर्टिफिकेट सरेंडर हो चुका है ताकि वो उसे अपॉइंट ना कर ले. एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बनना है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन तो वो कंपलसरी क्या होना चाहिए? इट शुड बी आइदर अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अंडर सेक्शन 8 और अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट 1860 और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 दैट इज अ ट्रस्ट. तो या तो वो ट्रस्ट हो सकता है या तो सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो या तो आप एक एनजीओ कंपनी बना सकते हो अंडर सेक्शन 8. तब जाके आप वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हो जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर रजिस्टर्ड होगा. अगर आपने इस पूरे रूल्स का कहीं पे भी वायोलेशन किया तो पेनल्टी लग जाएगी 5000 और अगर कंटिन्यूअस है तो 5000 पर डे आफ्टर द वेरी फर्स्ट डे. और अगर फॉल्स स्टेटमेंट कहीं पे भी दिया, रॉन्ग सर्टिफिकेट, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स रिपोर्ट, पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 448. और 448 क्या बोलता है? पेनल्टी उसकी अमाउंट कितनी होगी? 447 जितनी. देखो 3 सेक्शन सीधा बोल दिया होता 447 तो भी क्या प्रॉब्लम था, फिर भी क्या बोला? 448 की पेनल्टी लगेगी. 448 क्या बोलता है? 447 की पेनल्टी लगेगी. पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, जो हम इसी चैप्टर में आगे देखने वाले. So that was each and everything regards to registered valuer and the rules related to registered valuer. Now friends, let us move to the very next topic, that is government company. Section 2 clause 45 defines the word government company, what it means. Simply saying, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर एटलीस्ट 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो टोटल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनका शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 51% है. ये जो आप 51% गिन रहे हैं उसमें गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग नहीं देखना है. मान लो एक ए लिमिटेड करके गवर्नमेंट कंपनी है, उसने बी लिमिटेड में 10% जितना शेयर होल्डिंग रखा है, तो बी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं उसके लिए ए लिमिटेड का शेयर होल्डिंग हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कंसिडर करेंगे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. हाउएवर किसी गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है. सेम लाइक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी डीम्ड पब्लिक कंपनी, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या बन जाएगी? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. सो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% इज हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कंबाइनली. या तो गवर्नमेंट का मान लो कोई शेयर होल्डिंग नहीं है पर
एक ऐसी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वो भी ऑटोमेटिकली क्या बोली जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी. So if share held by government company, then it is not counted for determining the government company. However, if it is a subsidiary, then it will be deemed government company. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. A लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर एटलीस्ट 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है. A लिमिटेड की एक सब्सिडरी है B लिमिटेड. तो बोलो B लिमिटेड का शेयर होल्डिंग क्या देखने की जरूरत है? नहीं. वो क्या हो जाएगी? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. मान लो B लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी है C लिमिटेड. तो सी लिमिटेड को क्या बोलेंगे? सी लिमिटेड विल ऑल्सो बी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैंने यहां पे नीचे क्वेश्चंस लिखे. इन ए लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 20%, गुजरात गवर्नमेंट हैज 20% एंड वन गवर्नमेंट कंपनी हैज 20%. देन वेदर ए लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. आप बोलोगे सर 20 प्लस 20 टोटल 60%, मोर देन 51%. गलत. हमें शेयर होल्डिंग गिनते वक्त सिर्फ क्या देखना है? हाउ मच परसेंटेज इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट. दैट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और कंबाइनली. तो यहां पे हो रहा है 20 और 20 टोटल 40 और इसी वजह से ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. सपोज इन द अबव एग्जांपल ए लिमिटेड दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी हैज 51% शेयर होल्डिंग. तो कहने से अभी ये कंपनी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और इसीलिए वो हो जाएगी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. फिर जो मैंने वापस आपको ऊपर ही पूछा था, ए लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी, बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, सी लिमिटेड इज होल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड, देन वेदर सी लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी? आंसर इज यस. व्हाई? बी लिमिटेड ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी बिकॉज इट इज सब्सिडरी ऑफ वन अनदर गवर्नमेंट कंपनी. तो अभी बी लिमिटेड क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी. एंड सी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड. सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी विल ऑल्सो बिकम व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी. चेन रिएक्शन जैसा है. सो सिंस बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. सिंस सी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड, इवन सी लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी. आपको याद ही रहेगा कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमने बहुत सारे एग्जम्पशंस देखे थे. बहुत सारे एग्जम्पशंस गवर्नमेंट कंपनी को दिए जाते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी को अलग से बाइफरकेट करना जरूरी है क्योंकि उसमें जनरली सुपरविजन रहता है गवर्नमेंट का और इसी वजह से उसको की मैनेजरियल पर्सोनल वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं था. उसको अपॉइंटमेंट बाय एनआरसी, उसमें डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं था. देयर वर सो मेनी पॉइंट्स व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी. सेक्शन 394 एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, उसका एक एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है कि हाउ द कंपनी हैज वर्कड, वेदर द मैनेजमेंट वाज सफिशिएंट और नॉट, व्हाट वर द डिसीजंस टेकन, व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन. और ये कब तक बनाना पड़ेगा? दिस हैज टू बी मेड विद इन 3 months ऑफ द एजीएम. विद इन 3 months ऑफ एजीएम. कौन सी एजीएम? इन विच द कमेंट्स बाय C&AG एंड ऑडिट रिपोर्ट आर प्लेस्ड. C&AG गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करवाता है थ्रू दी ऑडिटर. तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है और उसके ऊपर C&AG जो कमेंट करता है वो जिस एजीएम में रखा गया, उस एजीएम के 3 महीने के अंदर अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैज टू बी प्रिपेयर्ड. और ये किसको आपको देना पड़ेगा? वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मेंबर, दिस हैज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. एंड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो द मेंबर, तो कहने से बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. Where central government is member, then it will prepare the report same as above. यानी कि अगर मेन मेंबर स्टेट गवर्नमेंट है तो भी इस तरीके का रिपोर्ट बनाया ही जाएगा विद इन 3 months ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इन विच द ऑडिट रिपोर्ट एंड कमेंट्स ऑफ C&AG was placed. And if in that company central government is also the member, then it will be placed before both the house of parliament. The same reverse. पता चल रहा है? अभी एक नया कंसेप्ट आता है यहां पे, निधि कंपनी. निधि कंपनी along with some rules we have to see. मैंने इसको यहां पे बहुत ही शॉर्टर मैनर में प्रेजेंट किया है और उसके सारे रूल्स कवर करने का ट्राई किया है जो कि मॉड्यूल में 4-5 पेजेस में डिवाइडेड है. एक निधि कंपनी होती क्या है? सी द निधि कंपनी, मान लो फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन अ विलेज. मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है जबकि विलेज के लोगों के पास थोड़ा कम पैसा है. वो लोग बाहर कहीं पे लोन लेने जाएंगे तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन लेके आएंगे. उससे अच्छा मैं उनको बोलता हूं कि मैं ही तुम लोगों को पैसे दे देता हूं, तुम लोग मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट दे देना दूसरों से, तो मेरा पैसा पड़ा नहीं रहेगा, मुझे इंटरेस्ट की इनकम होगी और तुम लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा. म्यूचुअल कंसर्न हो गया ये. पर ये चीज थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करनी है, थोड़े बड़े पैमाने पे करनी है.
ट्रांसपेरेंसी के साथ करनी है तो क्या, देन वी हैव टू फॉर्म अ कंपनी कॉल्ड निधि कंपनी। इस निधि कंपनी को बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें जो मेंबर्स बनते हैं वो एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प कर पाए और इनकी सेविंग्स की हैबिट थोड़ी बढ़ती जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें जो मेंबर्स है किसी को एक दूसरे के पैसे नहीं चाहिए, सब पैसे वाले हैं, तो ये लोग अपने पैसे इकट्ठा करके किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड। पर म्यूचुअल फंड बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उस पर सेबी की नजर रहती है, जबकि निधि कंपनी थोड़े छोटे पैमाने पे होता है। इट इज ऑन द सेम, क्योंकि मेंबर्स खुद ही अपने लिए ही कर रहे हैं और सारे मेंबर्स जनरली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। सो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग्स एंड रिजर्व फंड अमॉन्ग्स मेंबर, किसी को जरूरत है तो एक दूसरे को कोऑपरेशन देने के लिए जो कंपनी बनाई जाती है उसे क्या बोलेंगे, निधि कंपनी। अब इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। अब तक हमने निधि कंपनी पहले भी देखा हुआ है। सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में देखा था कि जहां पे सेक्शन 160 में 1 लाख रुपए की डिपॉजिट रखनी थी, वहां पे अगर वो निधि कंपनी होती तो सिर्फ 10,000 रुपए की डिपॉजिट रखनी होती थी। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निधि कंपनी के लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए गए थे। यहां पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिसीविंग एनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में की जाती है, फॉर्म नंबर NDH 4 अलॉन्ग विद द फीस फ्रॉम अ पब्लिक कंपनी, यानी कि एक चीज कंपलसरी हो गई कि निधि कंपनी हमेशा क्या होगी, पब्लिक कंपनी। डिक्लेयर द कंपनी एज निधि कंपनी, दिस एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एज एक्सटेंडेड टाइम बाय रीजनल डायरेक्टर। यानी कि सबसे पहले आपको कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बनाना पड़ता है, जिसके बाद आप NDH 4 फॉर्म फाइल करेंगे और वो कंपलसरी आपके इनकॉर्पोरेशन से 1 साल के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू, इट कैन गिव यू द स्टेटस ऑफ निधि कंपनी। और ये जो 1 साल का टाइम है, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय रीजनल डायरेक्टर ऑल्सो, अगर आप लोग अपील करते हो तो। इफ NDH 4 नॉट फाइल्ड, then it cannot file SH7, that is notice to registrar of any alteration to share capital, and form number PAS3, that is return of allotment। ये थोड़ी पनिशमेंट जैसा कर दिया कि जब तक आप लोग NDH 4 फॉर्म साइन नहीं करोगे तब तक आपके मेंबर्स में अगर कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज यू कैन नॉट फाइल SH7 टू द ROC। तो ऑन पेपर आपके शेयर होल्डर वैसे के वैसे ही रहेंगे। किसी दूसरे बंदे को नए शेयर्स अलॉट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू कैन नॉट फाइल PAS3। ये 2 फॉर्म है जो आप नहीं भर पाओगे। कब नहीं भर पाओगे, अगर आपने NDH 4 फॉर्म फाइल नहीं किया है बीइंग अ निधि कंपनी, तो ये कंपलसरी हो जाता है आप सबके लिए भरना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये रूल्स रिसेंटली इंकॉर्पोरेट हुए, तो जो निधि कंपनी करंटली है उन सबको NDH 4 भरने का उन्होंने मैंडेट किया। जब तक वो लोग नहीं भरेंगे तब तक ये 2 फॉर्म भी वो लोग नहीं भर पाएंगे एज अ पनिशमेंट। अभी जो रूल्स आ रहे हैं, निधि कंपनी कई कबार वो लोग एग्जाम में पूछते हैं और अगर वो आ जाता है तो सीधा 4 मार्क पूछेंगे। क्या, एक लाइन के 4 क्वेश्चन या तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो मैं जो अभी आपको 1 लाइनर बता रहा हूं वो आप प्लीज फालतू मत समझिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नंबर 1, निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट मनी एंड गिव लोन टू द मेंबर। अपने मेंबर के पास से मनी एक्सेप्ट कर सकती है एंड लोन दे सकती है। मेंबर कांट बी बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट और माइनर, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रस्ट या तो कोई माइनर निधि कंपनी का मेंबर बन सकता नहीं है। निधि कंपनी का शेयर कैपिटल किसी बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं जा सकता, दैट इज फॉर इंडिविजुअल, इवन HUF कैन बिकम ओवर देयर। नो ऑब्जेक्टिव इन MOA एक्सेप्ट हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स इन द मेंबर। MOA में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वो है ये हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स इन मेंबर। उसके अलावा कोई दूसरे बिजनेस का पर्पस होना चाहिए नहीं। इट विल ऑलवेज बी अ पब्लिक कंपनी, एज आई सेड यू अर्लियर ऑल्सो। वो प्राइवेट कंपनी OPC नहीं बन सकती और उसके नाम के पीछे कंपलसरी निधि लिमिटेड लगता है। जैसे OPC के नाम में OPC लगता है, वैसे ही निधि लिमिटेड के नाम में निधि लिमिटेड लगना चाहिए ताकि लोगों को पता चले दैट इट इज अ निधि लिमिटेड। वर्डिंग्स आर निधि लिमिटेड, नॉट प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल निधि कंपनी की कितनी होनी चाहिए, इट इज 5 लाख। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम 200 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, मिनिमम 200 मेंबर्स। नो प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, सिर्फ इक्विटी अलॉट कर सकती है। इवन इट कैन नॉट इश्यू डिबेंचर एंड डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो सिर्फ अपनी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स रखेगी और डिबेंचर्स इश्यू नहीं करेगी, प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं करेगी। जो एनुअल रिटर्न होता है दैट इज टू बी फाइल्ड अंडर NDH 1
और वो कब तक फाइल कर देना पड़े? विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी जो लिमिट्स है वो सब कुछ अलग है। सो एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड इन NDH1 विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसका कौन सा बिजनेस वो नहीं कर सकती? सी, मेंबर्स में सेविंग्स बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट करना है, पर इट कैन नॉट डू द बिजनेस इन द नेम ऑफ चीट फंड। जो लकी ड्रॉ सिस्टम होती है वैसे नहीं करने का, क्योंकि उसमें लोगों के पैसे डूब भी गए। शारदा चीट फंड, यू मस्ट बी नोइंग दैट। हायर परचेज, लीज, इंश्योरिंग, इंश्योरेंस का बिजनेस, ये सारे बिजनेस निधि कंपनी नहीं कर सकती। सो आप बोलोगे सर मेन ऑब्जेक्ट है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड ऑल। उसके लिए अगर आप ऐसा बोलो कि मैं इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा हूं ताकि लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरे, फ्यूचर में सेविंग्स होगी, इंश्योरेंस दिया जाएगा, नहीं। You cannot do the business of cheat fund, hire purchase, leasing, insurance, no. It can't acquire another company by any manner. वो किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर नहीं कर सकती, वो किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी नहीं बना सकती। It may provide locker on rent to the members. मेंबर्स को लॉकर की फैसिलिटी दे सकती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। पर लॉकर रेंट की जो इनकम है वो उसकी टोटल इनकम के 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। इट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल इनकम। तो रेंट इनकम ऑफ लॉकर कैन बी मैक्सिमम 20%। वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती है, पर डिविडेंड का रेट मैक्सिमम होना चाहिए 25%। अगर उसे 25% से ज्यादा डिविडेंड देना है तो क्या नहीं दे सकती? दे सकती है, पर उसकी थोड़ी कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, उसे अपने एरिया के रीजनल डायरेक्टर जो ROC के होते हैं, उस रीजनल डायरेक्टर के पास से इसकी अप्रूवल लेनी पड़े दैट आई वांट टू गिव मोर देन 25% डिविडेंड। प्लस जितना एक्सेस अमाउंट वो डिविडेंड देना चाहती है उतनी एक्सेस अमाउंट को उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी करना पड़े साथ साथ में। प्लस ये एक्सेस डिविडेंड तभी दे सकती है व्हेन इट हैज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट अलोंग विद द इंटरेस्ट। 25% डिविडेंड देने के लिए कोई कंडीशन नहीं देखना है, उससे ज्यादा अगर आपको देना है तो ये 3 कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। देन डिविडेंड फ्रॉम मेंबर, डायरेक्टर्स कंपल्सरी इट शुड बी फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स के अलावा कोई डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। और डायरेक्टर की टर्म क्या रहेगी? 10 ईयर्स। डायरेक्टर की टर्म मैक्सिमम 10 ईयर्स। इन लोगों को सेक्शन 152 भी फॉलो करना पड़ता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 164 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 152 जहां पे DIR 2 DIR 12 भरना पड़ता है, 164 डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। क्या 10 साल के बाद ये डायरेक्टर वापस रीअपॉइंट हो सकता है? हाँ, पर 2 साल के कूलिंग पीरियड के बाद। यानी 10 साल की टर्म, उसके बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड, उसके बाद वापस डायरेक्टर बन पाएगा। नॉट टू ओपन करंट अकाउंट विद द मेंबर्स। मेंबर्स का करंट अकाउंट ये अपने पास ओपन नहीं कर सकते। विदाउट इंटरेस्ट वाला कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। नॉट टू एडवर्टाइज सॉलिसिटिंग डिपॉजिट, बट ऑब्वियसली इट कैन टेक डिपॉजिट ओनली फ्रॉम द मेंबर्स। तो वो लोग दूसरी जगह पे कहीं पे एडवर्टीजमेंट तो कर नहीं सकते, सिर्फ मेंबर्स के बीच में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं FD लाने के लिए, बट ओनली फॉर द वर्डिंग्स। ये एडवर्टीजमेंट करते वक्त वर्डिंग्स होने चाहिए दैट दिस इज फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन फॉर द मेंबर्स ओनली। ये पब्लिक कंपनी होने के बावजूद प्राइवेट कंपनी के थोड़े वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाते हैं, जहां पे ये पब्लिक एट लार्ज के पास से डिपॉजिट नहीं मंगवा पाएगी, सिर्फ मेंबर के पास से डिपॉजिट मंगवाएगी, एंड दैट टू विद द वर्डिंग्स दैट दिस इज ओनली फॉर द प्राइवेट सर्कुलेशन अमॉन्ग्स आवर मेंबर। नॉट टू टेक और लैंड डिपॉजिट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को डिपॉजिट देने का नहीं, उनके पास से पैसा लेने का नहीं। कैन टेक डिपॉजिट इन द नेम ऑफ माइनर, दिस इज माइनर, कैन टेक डिपॉजिट इन द नेम ऑफ माइनर इफ हिज गार्डियन इज अ मेंबर। तो माइनर जो होता है वो आपकी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, पर हाँ अगर कोई बंदा मेंबर है तो उसका कोई चिल्ड्रन है या कोई रिलेटिव है, वो माइनर की डिपॉजिट आप रख सकते हो, बट माइनर मेंबर नहीं बन सकता। जो ऑडिटर होते हैं उनकी टर्म क्या रहेगी? अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल, पार्टनरशिप फर्म है तो 5-5 साल की 2 टर्म, और उसके बाद उनका कूलिंग पीरियड कितना? यहाँ पे कूलिंग पीरियड है 2 साल, जो कि जनरल केस में 5 साल होता है। यहाँ पे कितना कूलिंग पीरियड है? 2 साल। तो डायरेक्टर को भी 10 साल के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड। यहाँ पे इंडिविजुअल है ऑडिटर तो 5 साल, फर्म है तो 10 साल, उसके बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड। अगर ये निधि कंपनी के रूल्स में आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी एंड ऑफिसर्स को फाइन लग जाएगा 5,000, और अगर वो कंटिन्यूइंग आपका ऑफेंस चलता रहा तो 500 पर डे तक की पेनल्टी भी लग सकती है। So that was each and everything regards to निधि कंपनी along with the rules. इसमें सब आ गया। Now very important section 447.
पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां पे भी फ्रॉड की बातें आती है, जहां जहां पे भी किसी को डिसीव करने के लिए कोई काम किया जाता है, किसी को फ्रॉडुलेंट मैनर में फंसाया जाता है, वहां वहां पे कंपनीज एक्ट के अंदर पेनल्टी लगती है सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। ये क्या है पेनल्टी? बहुत बड़ी पेनल्टी है। अगर आपने फ्रॉड करने के मकसद से कोई ऑफेंस किया, देन यू विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट अप टू इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 10 years, मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 10 years। और अगर ये फ्रॉड है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है, तो यहां पे मिनिमम 6 महीने नहीं होगा, वो हो जाएगा मिनिमम 3 साल। ना कि इतना, इसके साथ साथ पेनल्टी, जितनी अमाउंट का आपने फ्रॉड किया उतनी अमाउंट की मिनिमम पेनल्टी, सी वो अमाउंट आपको वापस तो देनी ही है। दिस पेनल्टी इज इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ दैट डेट। तो मान लो मैंने 1 करोड़ का फ्रॉड किसी के साथ किया, तो मुझे उसे 1 करोड़ तो वापस देने हैं, प्लस मुझे पेनल्टी दूसरी लग सकती है, मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम 3 करोड़। मैक्सिमम कितनी? 3 टाइम्स अमाउंट इन्वॉल्व। तो अगर आपने कोई 447 यानी कि फ्रॉड किया है तो पनिशमेंट क्या होगी? इंप्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 10 साल, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 10 years। पेनल्टी कितनी लग जाएगी? मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। पर अगर आपका फ्रॉड थोड़ा छोटा है, छोटा फ्रॉड यानी द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड इज लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लेस, यानी कि मान लो आपकी कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 5 लाख है, हाउ मच आई सेड 5 लाख, तो 5 लाख का 1% होगा 5000 या तो 10 लाख, विच एवर इज लोअर 5000। अगर आपका फ्रॉड 5000 से ज्यादा नहीं है, या तो मान लो यहां पे 5 लाख की जगह पे होता 5 करोड़, तो 5 करोड़ का 1% कितना? 5 लाख। 5 लाख और 10 लाख, विच एवर इज लोअर 5 लाख। अगर आपका फ्रॉड 5 लाख या उससे कम है, प्लस उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम 10 साल नहीं होगी, 6 महीने से लेकर 5 साल ही होगी। और मैक्सिमम फाइन जो आपको लगेगा दैट विल बी अप टू 50 लाख ओनली, या तो दोनों लग सकता है। सो जहां पे आपके फ्रॉड की अमाउंट 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर करके जो अमाउंट आती है उससे ज्यादा है, वहां पे 6 साल मैक्सिमम 10 years, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल। पेनल्टी में कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है। पर अगर आपके फ्रॉड की जो अमाउंट है दैट इज लोअर देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लेस, उससे भी कम है आपके फ्रॉड की अमाउंट, तो 6 महीने से लेकर 5 साल, और पेनल्टी की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो पाएगी? 50 लाख, या तो दोनों। फ्रॉड किसे बोला जाता है? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कोई बात छुपा के लोगों को आपने फंसाया, और अब्यूज ऑफ द पोजीशन विथ इंटेंट टू डिसीव फॉर रॉन्गफुल गेन और लॉस, बहुत लोग करते ही अब्यूजिंग ऑफ पोजीशन। तो अगर मैनेजमेंट में रह के आप कंपनी का कुछ बुरा करते हो, मैनेजमेंट में रह के अनड्यू गेन हासिल करते हो, अपने खुद के बेनिफिट के लिए कोई पैसा इकट्ठा करते हो, या अपने खुद के बेनिफिट के लिए जो मेंबर्स है कंपनी के उसको फ्रॉडुलेंटली उसके पैसे को फंसा देते हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास करवा दिया कंपनी में बाय कंसीलिंग द फैक्ट, जिसका कोई अलग ही मीनिंग निकलता था, जिसका कोई अलग ही इंपैक्ट निकलता था, ये सारी चीजें क्या बोला जाएगा? फ्रॉड। सेक्शन 450 क्या बोलता है? पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट इज इन्वॉल्व। अगर इस पूरे एक्ट में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन आपने किया जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी कहीं पे भी नहीं दी गई है, तो कंपनी और उसके ऑफिसर्स को फाइन लग जाएगा 10,000 का, और अगर वो कंटिन्यूइंग है देन 1000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख फॉर द कंपनी, और अगर वो ऑफिसर है तो मैक्सिमम 50,000। यहां पे मैंने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को इंक्लूड कर दिया है। ये पेनल्टी अमेंडेड पेनल्टी है बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है तो मिनिमम 10,000, कंटिन्यूइंग है तो 1000 पर डे, कंपनी के लिए मैक्सिमम 2 लाख, ऑफिसर्स के लिए मैक्सिमम 50,000। बट ऑब्वियसली वो माइनर लेवल की ही कॉन्ट्रावेंशन होंगे, तभी उसके लिए स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताई गई होगी, सिंपल है वो तो। सेक्शन 455 आता है डॉर्मेंट कंपनी। ये डॉर्मेंट कंपनी का जिक्र बहुत बार पहले हुआ है। अगर अनलिस्टेड डॉर्मेंट कंपनी है तो उसको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। डॉर्मेंट कंपनी को बोर्ड मीटिंग 4 नहीं करनी है,
1 in half of the calendar year and gap should be minimum 90 days. यानी कि डॉर्मेंट कंपनी को बहुत सारे फायदे पहले दिए गए, पर ये डॉर्मेंट कंपनी है क्या? कोई ऐसी कंपनी, बहुत बार ऐसी कंपनीज आती है जिसका कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, दैट इज जस्ट अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी। या तो कोई ऐसी कंपनी जो आज कुछ रिसर्च कर रही है और उसका मेन काम शुरू होगा 2 साल के बाद, या कोई ऐसी कंपनी जिसके पास आज असेट पड़ी हुई है पर वहां पे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, मे बी फ्यूचर में बिजनेस एक्टिविटी होगी। तो आज की तारीख में देयर इज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी। तो ऐसी कंपनी को कंपलसरी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना पड़ता है। क्यों मैं बोला कंपलसरी? क्योंकि अगर कोई कंपनी इनएक्टिव कंपनी है जहां पे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, अगर 2 साल तक कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी उसने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं लिया, देन आरओसी कैन स्ट्राइक ऑफ द नेम। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी वजह से मैं बोला कि अगर आप एक इनएक्टिव कंपनी हो, अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना ही पड़े। So where a company is formed and registered under this act for future project, or it is just framed to hold the properties, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स उसके पास है, that is a holding company of any other company. This company is not doing any other business. For example, Tata Sons, it is the umbrella company जिसके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स है पर कोई दूसरा significant accounting transaction नहीं है. It is not having any significant accounting transaction. Then such company, or we can say inactive company, may make an application, भले ही यहां पे word may है, but we have to construe as shall, make application to registrar for obtaining the status of dormant company. यहां पे एक वर्ड आया inactive company, तो ये inactive company किसे बोलते हैं? ध्यान से देखिए यहां पे, inactive company means a company not carrying on any business activity, so not having any significant accounting transaction. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अगर मान लो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसे मेंटेन करने के लिए कोई नॉर्मल एक्सपेंडिचर करते हो, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, पर ईयर आरओसी को कुछ फीस फाइल करनी पड़ती है व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न्स, वो फीस फाइल करते हो आरओसी को, वो फीस पे करते हो। किसी को सिर्फ शेयर्स अलॉट कर रहे हो आप आपकी कंपनी के, या किसी एक्ट के अंदर कोई पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि थोड़ा बहुत इनकम टैक्स भर दिया वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन हो रहे, बट ये समझिए कि ट्रांजैक्शन तो माइनर लेवल के ट्रांजैक्शन है, बिजनेस एक्टिविटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन लेवल के ट्रांजैक्शन है। सो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वर्ड जो है उसमें कौन सी चीजें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे? पेमेंट ऑफ फीस बाय द कंपनी टू आरओसी, पेमेंट अंडर एनी अदर एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, पेमेंट टू मेंटेन द ऑफिस एंड पेमेंट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाता। ये चीजें कर रहे हो फिर भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस तो ले ही सकते हो। सो इफ यू डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, कंपलसरी पिछले 2 सालों में आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, या तो you have not filed the financial statement and annual return both during last 2 financial year, यहां पे दोनों के दोनों आपने पिछले 2 साल तक नहीं भरे, तो आरओसी खुद आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे देगी, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगी। सी ये पहली जो चीज थी नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, उसमें आप खुद आरओसी को अप्लाई करोगे, जबकि ये दूसरी चीज है नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न ऑफ लास्ट 2 इयर्स, उसमें आरओसी खुद आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे देगी। सिंपल है वो। नाउ हाउ टू मेक एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी विल मेक एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर MSC1 मिसलेनियस 1 आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन और आफ्टर 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। कंसेंट ले लो, उनकी अप्रूवल ले लो। ये अप्रूवल लेने के बाद आपको एक MSC1 फॉर्म फाइल करना है, और ये MSC1 फॉर्म फाइल करके यू कैन गेट द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी इफ आरओसी इज अप्रूव्ड। हां, पर कंपनी कुछ केसेस में इनएलिजिबल नहीं है टू हैव द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। तो वो एलिजिबल कब होगी? इट इज एलिजिबल ओनली इफ नो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड। तो अगर कुछ ऑर्डर हो चुका है तो आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते नहीं हो। नो प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड और पेंडिंग, अगर ऐसा है तो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले पाओगे।
कंपनी इज नॉट हैविंग एनी पब्लिक डिपॉजिट, और उसके इंटरेस्ट में भी उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर डॉर्मेंट कंपनी हो जाओगे तो इनको पेमेंट करने में भी आप शायद डिले कर सकते हो या उनको पेमेंट ना करो, उसके वजह से उन्होंने बोला पब्लिक डिपॉजिट पड़ी हुई है तो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने का नहीं। अगर आउटस्टैंडिंग लोन बोल रही है कोई तो भी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं लोगे। बट यू मस्ट बी नोइंग कि जो छोटी छोटी कंपनी होती है उसमें जनरली क्या होता है, डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के पास से अनसिक्योर्ड लोन आती रहती है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन अगर आउटस्टैंडिंग है और ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दी हुई है, अगर वो लोग आपको कंसेंट दे देते हैं तो आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले पाओगे। सी ऐसा पब्लिक डिपॉजिट में नहीं था, ऐसा सिर्फ कहां पर है, अनसिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन कवर्ड नहीं है यहां पे, सिर्फ कौन सी लोन कवर्ड है, अनसिक्योर्ड लोन। देन देयर इज नो डिस्प्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ओनरशिप। कंपनी इज नॉट हैविंग एनी स्टैट्यूटरी ड्यूज, कुछ भी पेएबल नहीं है। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन एनी वर्कमैन ड्यूज एंड द सिक्योरिटीज शुड बी अनलिस्टेड। एक लिस्टेड कंपनी कभी भी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो रही है तो फिर आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते, बाकी यू कैन टेक द स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी। आप MSc 1 में अप्लाई करोगे और ROC आपको एक सर्टिफिकेट देगा बीइंग डॉर्मेंट कंपनी इन MSc 2। रजिस्ट्रार विल मेंटेन द लिस्ट ऑफ डॉर्मेंट कंपनीज ऑन ई पोर्टल। तो MCA की वेबसाइट पे जाओगे तो डॉर्मेंट कंपनी के टैब में आपको वो लिस्ट मिलेगी कि अपनी कंट्री में कितनी कितनी कंपनीज फिलहाल डॉर्मेंट कंपनी है। Dormant company will file a return of dormant company annually, indicating financial position audited by chartered accountant in practice in MSc 3 within 30 days from the end of financial year. Generally financial statement और annual return delayed होता है फाइल करने में। डॉर्मेंट कंपनी को सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल करना है, दैट इज फॉर्म नंबर MSc 3, जो कि CA इन प्रैक्टिस फाइल करेगा, उसकी सिग्नेचर उसमें जाएगी। पर देखो डॉर्मेंट कंपनी है, दूसरा कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो ये फटाफट आप फाइल कर सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन फाइल करने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगेगी और इसीलिए ये कब तक फाइल कर देना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। रोटेशन ऑफ एप्लीकेबल इज नॉट एप्लीकेबल टू डॉर्मेंट कंपनी, याद रखिएगा। रोटेशन ऑडिटर्स को इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगर डॉर्मेंट कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, वो तो सेम। पब्लिक कंपनी है तो 3, प्राइवेट है तो 2, OPC है तो 1। अगर कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली 5 साल तक डॉर्मेंट रहती है, देन रजिस्ट्रार शैल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अगर 5 साल तक डॉर्मेंट है तो उसका नाम कंपलसरी रजिस्ट्रार को स्ट्राइक ऑफ कर देने का, उसको रजिस्टर में से निकाल देने का। देन इफ दैट कंपनी वांट्स टू बिकम एक्टिव, इट हैज टू अगेन अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन बिकॉज द नेम हैज बीन स्ट्राइक्ड ऑफ। तो 5 साल तक कोई भी कंपनी डॉर्मेंट रहेगी तो वो बड़ा पाप हो जाएगा, नाम उसका मिट जाएगा। इफ इन बिटवीन कंपनी वांट्स टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, मान लो उसे थोड़े कंसेशन चाहिए तो क्या किया, आज एक्टिव डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया, MSc 2 में उसको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल गया। देन आफ्टर 3 years इट नोज दैट 5 साल तक तो नहीं रह पाऊंगा, तो 5 साल के पहले ही वो क्या कर देगा, एक्टिव कंपनी बनने के लिए अप्लाई कर देगा ROC को, और ये एप्लीकेशन होगी MSc 4 में। और तब तक का जो रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर का वो भी भरना पड़ेगा MSc 3 में। तो उस दिन तक का डॉर्मेंट कंपनी का रिटर्न जाएगा, जैसे ही वो कंपनी एक्टिव हो जाएगी उसके बाद नॉर्मल रिटर्न भरा जाएगा। और इसे एक्टिव बनाने के लिए फॉर्म जो ROC अप्रूवल देगा वो होगा MSc 5 के अंदर। वेयर डॉर्मेंट कंपनी डू एनी एक्ट मेंशन इन द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, अनलिस्टेड है वगैरह वगैरह, इसमें से कोई भी एक चीज वो कर देती है, देन कंपलसरी उसे 7 दिन के अंदर अंदर एक्टिव कंपनी बनने की एप्लीकेशन फाइल करनी ही पड़े। और अगर इन बिटवीन ROC को चाहिए तो वो भी ऐसी डॉर्मेंट कंपनी को एक्टिव बना सकती है। द पावर हैज बीन वेस्टेड विद ROC टू मेक एनी कंपनी एज एक्टिव कंपनी। तो डॉर्मेंट कंपनी के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली इट इज ऑन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड ऑन दिस मैटर्स कि अगर ये चल रहा है तो क्या डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है, आंसर इज नो। आर यू गेटिंग दिस पीपल, येस और नो? So that was miscellaneous provision wherein registered valuer, government company, punishment for fraud, dormant company, this all the things were included, but very important for the exam. Thank you so much.